Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्रेमी सलाम। Let us read our theme verse all together. आइए हम हमारे मुख्य वचन को, मुख्य विचार को सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। Psalms 34 and verse Father, we come to again in your presence, thanksgiving, worshipping you, thanking you, praising you. Lord, thank you for the youth camp you have given to us again in 2024. Thank you for the fourth day of the youth camp. Thank you for keeping us safe. Thank you for giving us your word. Thank you for giving the theme verse, Psalm 34 and verse 9. Thank you for the word you have given to us through your messengers. And thank you for teaching us how to fear you, Father. We come to you again during this youth session. We ask your presence in the midst of us. Please be in the midst of us. Cleanse us with your precious blood. Help us to listen to your voice. Help us to listen to you, and help us to hear your voice in our hearts. Lord, be in our midst and help us to have our thoughts and our ears on you so that we can hear you. And please remember me, forgive me with your precious blood, and fill me with your Holy Spirit. Put your words in my mouth, and help brother in the translation also, and give us a blessed time. Be in the midst of us. Let thy name be glorified. We worship you, we thank you, and we ask your help in everything. We commit this meeting, this time in your hands, and we pray in the most highly exalted name of Lord and Savior, our Lord Jesus Christ. Amen. This verse says that we have to fear the Lord. ये वचन हमें ये कहता है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है। And there is one more verse about Jesus Christ when he was in this earth, how he feared the Father. और एक वचन है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, किस तरह से वह अपने पिता का भय को मानता था। Let us see that word, Isaiah, book of Isaiah, chapter 11. आइए हम उस वचन को देखेंगे, यशायाह की किताब उसका 11 अध्याय। Book of Isaiah, chapter 11 and verse 1 and 2. Please, somewhat read out loudly, please. यशायाह की किताब 11 अध्याय 1 और 2 वचन कोई ऊंची आवाज में हमारी सहायता करे पढ़ने में। हाँ। In this verse, this speaks about Jesus Christ. ये इस वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। The stump of Jesse means the संतानम। हाँ, इसे के टूट में से एक डाली फूट निकलेंगी। That means Jesse, from Jesse David will come, from David Jesus Christ will come. ये इसे के वंश से दाऊद आएगा
और दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह आएगा। This verse says about Jesus that he fears the Father. हाँ, इस वचन के द्वारा हमें यह समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह पिता का भय मानता है। In the second verse we read the spirit of knowledge and the fear of the Lord. हाँ, यशायाह 11 अध्याय और उसका दूसरा वचन में यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा। So fear was Jesus when he was on the earth, he feared the Father. जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे था, वह पिता का भय को मानता था। And one more verse, how fear was to him. Let's see Isaiah chapter 32. हाँ, और एक वचन को हम देखना चाहते हैं, यशायाह की किताब उसका 32 अध्याय। Chapter 33 and verse 6. क्षमा चाहते हैं यशायाह 33 अध्याय और उसका 6 वचन। 33 and verse 6. यशायाह 33 अध्याय और उसका 6 वचन। और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा। हाँ, The fear of the Lord is our treasure. यहोवा का भय उसका धन होगा। Fear of the Lord is the treasure. यहोवा का भय ही धन है। So there are some people in the word of God who feared the Lord, and that fear of the Lord was really treasure for them. हाँ, धरती पे कुछ लोग ऐसे थे जो परमेश्वर का भय मानते थे और सचमुच परमेश्वर का भय उनके लिए धन के समान हो गया। They never went after the treasure. They never went after money. वे कभी भी संसारिक धन के पीछे नहीं गए। They just fear the Lord. वे केवल परमेश्वर का भय माने। But they feared the Lord, and the treasure came to them. हाँ, केवल परमेश्वर का भय माने और धन उनके पास आया। Let us see one example of that. आइए हम उस उदाहरण को देखेंगे। Genesis chapter 39. उत्पत्ति की किताब जेनेसिस 39 चैप्टर। Genesis chapter 39 and verse 9. और उसका 9 वचन, पेज नंबर 50। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, हाँ, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रखी, थोड़ा इसीलिए भला मैं ऐसी परिशुद्धता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? Here Joseph, there is one man of God named Joseph. एक मनुष्य, एक परमेश्वर का जन जिसका नाम यूसुफ है। Joseph, he was in Egypt, far away from his father and his brothers and his family. हाँ, यूसुफ मिस्र में अपने भाइयों और पिता से बहुत दूर रहता था। Nobody was there to ask him. उसे पूछने के लिए, सवाल करने के लिए कोई भी नहीं था उसके करीब। Nobody was there to ask him, what are you doing? Are you doing right or wrong? हाँ, क्या आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ये प्रश्न पूछने के लिए उसके पास कोई नहीं था। But he had one thing in his heart. परंतु उसके दिल में एक बात उसके दिल में थी। That one thing was the fear of the Lord. वो एक बात अर्थात परमेश्वर का डर और भय। He never wanted to become great. उसको कभी भी महान होने की अपेक्षा, इच्छा नहीं थी। He never wanted to avenge his brothers who had put him to a lot of trouble. हाँ, उसके भाइयों से कभी भी बदला लेने की इच्छा उसके दिल में नहीं थी, जिन्होंने उनको काफी तकलीफ में डाला था। He only had one thing in his heart, that was fear of the Lord. केवल एक ही उसके दिल में था, वो है परमेश्वर का भय। There was one time his boss's wife had forced him to do sin with her. हाँ, एक समय उसके जीवन में ऐसा आया कि स्वामी की पत्नी ने उसके साथ में पाप करने के लिए काफी जबरदस्ती किया। Nobody was there. Nobody will know even if he sins. यदि यूसुफ पाप भी करता तो भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। But he feared the Lord. परंतु वो परमेश्वर का भय को मानता था। He feared the Lord and he said, no, because I fear the Lord, I can't sin against my heavenly Father. हाँ, वो परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए वो उसने इस बात को कहा कि मैं बड़ी दुष्टता करके ऐसे परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं या मेरे स्वर्गीय पिता के विरुद्ध कैसे पाप करूं। Because he feared the Lord, that fear of the Lord became treasure to him. हाँ, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था
और वह परमेश्वर का भय उसके लिए धन बन गया। After he rejecting that offer given by his boss's wife, हाँ। he was thrown into the prison because she falsely accused him of doing that sin. स्वामी की पत्नी ने उसे उसके साथ सोने के लिए जब कहा था, तब उसने साफ साफ इनकार कर दिया। तब वही स्त्री ने उस पर गलत आरोप लगाया और उसे बंदीगृह में डाल दिया गया। So he feared the Lord and went to jail. वो परमेश्वर का भय मानता था और इसलिए वह बंदीगृह में अर्थात जेल में भी गया। We read that fear of the Lord is a treasure. हाँ, उसने इस बात को समझ में आया कि परमेश्वर का भय ही सबसे उत्तम और महान है। Fear of the Lord is the richness, is the treasure for us. हाँ, ये परमेश्वर का भय यही धन है। ध्यान दीजिए। But Joseph feared the Lord and went to jail. यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए वो बंदीगृह जाने के लिए भी तैयार हो गया। Sometimes when we fear the Lord, we have to go to some difficult situations. हाँ, कभी कभी जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें कभी कभी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। He went through that difficult circumstance for some years. कई सालों तक यूसुफ ऐसे कठिन परिस्थिति में से गुजरना पड़ा। After that, God has done a great miracle in his life. उसके बाद परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में बहुत महान काम किया। From the prison, God took him to the palace. हाँ, उस बंदीगृह से परमेश्वर ने महल में उसे बिठाया। Joseph was in prison. He was miserable. He didn't have enough food, enough clothes. He was miserable in that prison. बंदीगृह में यूसुफ बड़ी दरिद्री अवस्था में था। उसके पास भोजन के लिए भी आवश्यक भोजन नहीं था। Why? Because he feared the Lord. Fear of the Lord during
People will think if someone went to jail, then he must have done something definitely. That's why he went to jail. हाँ, क्योंकि मनुष्य की सोच ऐसी है कि जरूर उसने कुछ न कुछ गलत किया होगा, इसलिए वो बंदी गृह में गया। That's how they looked at Jesus also. He would have done something wrong. That's why he is being put to death by the cross, on the cross. तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के लगाव में भी वहाँ के प्रजा के लोगों ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ न कुछ गलत किया होगा, इसलिए उसको क्रूस की मृत्यु उसको दिया गया। When three of them went to that on the hill, Golgotha hill, Jesus was crucified on the middle. जब ये तीन जन गोलगत्ता पहाड़ की ओर चल पड़े, तो प्रभु यीशु मसीह को ये दो कुकर्मियों के बीच में क्रूस पर लटकाया गया। Then people were talking a lot of things about him in front of Jesus. और वह प्रजा और जो पब्लिक है वह इन प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत सारी बातें बोलने लगे। They were mocking him. वे ठट्टा मस्करी करने लगे। They were telling that he told himself that he is Christ, but he can't come down. Then they were laughing at him. Sorry. They were saying that he told that he is the Christ, but he himself cannot come down. He is dying, and they were laughing and mocking Jesus. लोग इस प्रकार ठट्टा मस्करी करने लगे कि वो अपने आप को तो मसाया कहता है, परंतु वो अपने आप को मसाया कहने के बावजूद भी वो क्रूस के नीचे उतर नहीं सकता है। And people were mocking Jesus that he told he will bring down the temple and build it in 3 days. हाँ, और वो लोग ऐसा भी कहने लगे, ये तो इसने ऐसा बताया कि वो मंदिर को 3 दिन में ढा देगा, गिरा देगा और फिर से उसे निर्माण करेगा। They were laughing at him and they were telling that he told that he is son of God and he cannot save himself. हाँ, और वे हंस रहे थे, ठट्टा मस्करी कर रहे थे और इस प्रकार बातें कर रहे थे कि वो तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है और वो अपने आप को बचा नहीं सकता है, क्रूस पर लटकाया दिया गया। देखो These two मस्करी करने लगा। please read verse 39. 39 verse 39. 39 वचन, लुक 23 अध्याय और उसका 39 वर्ष। जो कुकर्मी वह लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। So he was mocking Jesus. वह प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा मस्करी कर रहा था। He himself was being crucified. और वह स्वयं कुकर्मी नंबर 1 वह भी लटकाया गया था। He was going to die in few hours. कुछ घंटों में उसकी मौत होने वाली थी। But he still wants to mock Jesus and laugh at him. हाँ, तो भी वह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हंस रहा है और ठट्टा मस्करी कर रहा है। There are a lot of people like that in today's world. आज की दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं। They look at Jesus and they mock at Jesus. वे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और ठट्टा मस्करी करते हैं। Their life will be miserable, but they mock at Jesus. उनकी जीवन बहुत ही दरिद्री अवस्था में है, मृत्यु के करीब है, तो भी वे यीशु की ठट्टा करते They हैं। laugh at his people. हाँ, और प्रजा को के ऊपर भी मस्करी करते हैं, हंसते हैं। They look down at Jesus Christ. हाँ, प्रभु यीशु मसीह को नीचे दृष्टिकोण से देखते हैं। And they mock and they laugh and ridicule Jesus Christ. हाँ, वे हंसते हैं, मस्करी करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में वे कुछ इस प्रकार बुरा भला कहते हैं। This criminal number 1 also mocking Jesus like that. कुकर्मी नंबर 1 ने भी इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की हंसी मजाक और ठट्टा किया। And the second criminal, criminal number 2, he said a word which is very interesting word. कुकर्मी नंबर 2 ने कुछ ऐसे बातों का उच्चार किया जो बहुत ही रुचिदायक है। Please read to us chapter 23 and verse 40. कृपा करके 23 अध्याय और 40 वचन पढ़िए। ईश्वर तुझसे ने उससे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही डर पा रहा है। Don't you fear God? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता?
This criminal is telling to that first person, Kukar- don't you fear God? कुकर्मी नंबर 2 एक नंबर कुकर्मी से बात कर रहा है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? This second person, he have some fear of the God. कुकर्मी नंबर 2 के दिल में कुछ परमेश्वर का थोड़ा सा डर भय है। He was thinking to himself, I have committed a lot of sins. वो अपने आप में सोच रहा था कि मैंने बहुत से पाप किया हो, I have robbed many people. मैंने बहुत से लोगों को लूटा हो, I have beaten up many people. बहुत से लोगों की मार पिटाई किया हो, I have killed some people. कई लोगों की मैंने तो हत्या भी किया है, Because of me, many people are being suffering. मेरे कारण बहुत से लोग आज दुख उठा रहे हैं। I deserve this kind of death. He was thinking that in his वो mind. कुकर्मी नंबर 2 मन ही मन सोच रहा था कि मैं इस प्रकार की मौत और मृत्यु का बिल्कुल योग्य हो। When he saw Jesus, पर जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, Jesus said, Father, please forgive them, for they do not know what they are doing. जब प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुना, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या करते। By listening to those words, his heart must have been changed. That second criminal's heart must have been changed by hearing those words. कुकर्मी नंबर 2 ने जब ऐसे शब्द जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुना, हो सकता है उसका दिल पिघल गया होगा। Then he could have remembered his own sins and why he is hanging there on the cross. उसने अपने स्वयं के पाप को स्मरण किया और वह क्रूस पर जो लटका है उस बात को भी याद किया। And now he is telling to that first person, don't you fear the Lord? वह कुकर्मी नंबर 2 कुकर्मी नंबर 1 से वह डांट कर कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? The first criminal didn't have the fear of the Lord. कुकर्मी नंबर 1 के दिल में परमेश्वर का डर भय नहीं था। He was going to die in a few hours. कुछ घंटों में उसकी मौत होने वाली थी, But he has this arrogance to mock Jesus from that cross. हाँ, क्रूस पे लटका हुआ है और वहां पे ऐसी परिस्थिति में वह प्रभु यीशु मसीह की ठट्टा मस्करी कर रहा है। And he did not change his heart, even he was rebuked by this second criminal. कुकर्मी नंबर 2 ने डांटने के बावजूद भी उसने अपना दिल का परिवर्तन करने का निर्णय नहीं लिया। But the second criminal feared God in his heart. कुकर्मी नंबर 2 के दिल में परमेश्वर का डर भय था। Was he a good man? Was he a good man? क्या सचमुच वो अच्छा मनुष्य था? No, he was not a good man. नहीं, वो अच्छा मनुष्य नहीं था। He did many bad things. बहुत सारी बुरी बातें किया, He did a lot of things, so he ended up on the cross. बहुत सारी बुरी बात की है, इसलिए उसका अंत इस प्रकार क्रूस पर हुआ। Then he feared Jesus. He feared the Lord. He feared God. Then he talked to Jesus. He told one thing to Jesus. वह परमेश्वर का भय को मानता था और उसने प्रभु यीशु मसीह से कुछ बातें कही। कुकर्मी नंबर 2 ने कहा, Please read verse 42. कृपा करके 42 वचन को पढ़िए। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। He feared God and he prayed to Jesus. वो परमेश्वर का भय मानता था और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया। That fear of the Lord made him to pray, ask Jesus for forgiveness. वह परमेश्वर का भय ने उसके मन में प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगने की इच्छा को निर्माण किया। When he told that words to Jesus, then Jesus immediately replied, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. हाँ, ऐसे शब्द जब कुकर्मी नंबर 2 ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तब 43 वचन में तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। So the person who was even dying in few hours, he had fear of the Lord and he went to paradise after dying. हाँ, जो कुकर्मी नंबर 2 जिसके दिल में परमेश्वर का डर भय था और कुछ समय में उसकी मौत और मृत्यु होने वाला था, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया और वो स्वर्गलोक में चले गया। The first criminal didn't have the fear of the Lord. He was about to die, but he still chose to mock Jesus Christ. कुकर्मी नंबर 1 के दिल में परमेश्वर का डर भय नहीं था, वो भी कुछ घंटों में मरने ही वाला था, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह का मजाक किया। There are many people like that who mock Jesus today.
आज भी इस दुनिया में अनेक लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का इस प्रकार मजाक करते हैं। There are many people who don't want Jesus in their lives. आज अनेक लोग हैं जो अपने जीवन में और जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को अपना जरूरत नहीं समझते हैं। They think that because Jesus was hanging on the cross, he was very weak. हाँ, वे ऐसा सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया क्योंकि वह बहुत ही निर्बल है। Because if he was really God, he should remove all those nails and he should come down alive. हाँ, यदि सचमुच वह परमेश्वर है तो इन सारे बंधन को तोड़कर वह नीचे आना चाहिए था। They think that God, the real God, should kill people. हाँ, ऐसा संसार के लोग सोचते हैं कि जो सचमुच जो परमेश्वर है उसने लोगों को मार डालना चाहिए। The real God should frighten all people. हाँ, जो सच्चा परमेश्वर, सच्चा ईश्वर सारे लोगों को भयभीत करता है। That's how the first person was thinking, and today many of the people in this world are thinking like that today. कुकर्मी नंबर 1 की सोच विचार ऐसे थे और आज भी अनेक संसार के लोग यही सोच और भावना में उनके धारण करते हैं मन में। But Jesus, he is the true God and the creator of the universe. He chose to be weak. He chose to become a man. प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, सच्चा ईश्वर और संसार का सृष्टि करता है और वह मनुष्य का रूप को उसने धारण किया। He is the creator and he also can destroy this world. वह सृष्टिकर्ता भी है और वे संसार को वह नाश भी कर सकता है। He can destroy everybody without doing anything. Just he can say and everything will be destroyed. हाँ, प्रभु यीशु मसीह बिना कुछ कहे ये सारा संसार को नष्ट कर सकता है। But he didn't come to destroy this world. परंतु वह संसार का नाश करने के लिए नहीं आया। He didn't come to kill people. वह लोगों को घात और मार डालने के लिए नहीं आया। He didn't come to show how his muscle strength is. हाँ, वो कितना सामर्थ्य और बलवान थे, अपना बल को प्रकट करने को नहीं आया। He didn't come into this world to show how great his greatness, how big he can become. अपनी महानता को बताने के लिए और प्रकट करने के लिए वह संसार में नहीं आया। He came into this world to show his love. वह अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए इस संसार में आया। He came into this world to show that real strength is loving and sacrificing. हाँ, वो बलिदान वाला प्रेम और वो सच्चा प्रेम को प्रकट करने के लिए वो इस संसार में आया। He came into this world to show that killing is not the strength. हाँ, वो संसार में इस बात को प्रकट करने के लिए आए कि घात करना, मारना ये कोई बल की बात नहीं है। He came into this world to show that even if he had the power to kill, forgiving is the strength. हाँ, वो इस बात को प्रकट करने के लिए आए कि चाहे प्रभु यीशु मसीह के पास मार डालना और नष्ट करने की ताकत रहने के बावजूद भी वो अपने आप को यहाँ तक नम्र किया और क्रूस पर प्राण को बलिदान किया। That is the strength he came to show to the whole world. हाँ, और यही बल और यही सामर्थ्य सारे संसार को प्रकट करने के लिए वो संसार में आया। And he came to show how great his love towards you. हाँ, और ये इस बात को प्रकट करने को आया कि उसके दिल में आपके लिए कितना बड़ा प्रेम और मोहब्बत है। That second criminal, he did a very bad thing. So nobody will forgive him on this entire planet of the earth. Nobody will forgive that second criminal in this whole world. Nobody can forgive him. कुकर्मी नंबर 2 को सारा विश्व में, संसार में कोई भी उसको क्षमा नहीं कर सकता है। If they make him stand in front of people and tell he did this, everybody will say he should be put to the death sentence. यदि मान लीजिए कुकर्मी नंबर 2 को सारे पब्लिक के सामने खड़ा भी करते और उसने ये पाप किया, वो गलत काम किया, ये गलत काम किया, तो सभी का उत्तर यही होता कि उसको क्रूस की मृत्यु है उसके लिए योग्य है। But when he feared Jesus, when he feared the Lord and asked forgiveness, his sins were forgiven. परंतु जब उसने परमेश्वर का डर भय को माना और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा की याचना और प्रार्थना किया, उसे क्षमा मिल गई। All the sins he had done, Jesus took himself upon him. सारे पाप इस कुकर्मी नंबर 2 ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। And he was forgiven and he went straight to paradise with Jesus. और उसके पाप क्षमा हो गए और वह सीधा
स्वर्ग लोक पहुंच गया। And Jesus came to love you, to sacrifice for you, to take your sins on the cross. प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करने के लिए आया और आपके लिए प्राण बलिदान करने के लिए आया और आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। If you still have not received Jesus Christ in your heart, please receive Him today. यदि अभी भी आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार नहीं किया है तो आज प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लीजिए। Don't think that He is weak. ये मत सोचिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही निर्बल है। He is very strong to forgive you. वह अति बलवंत अति सामर्थी है आपको क्षमा करने के लिए। He is very strong to pay for your sins. हाँ, वह अति सामर्थी है और बलवंत है आपके पाप के दाम को चुकाने के लिए। He is very strong to love you to the death. हाँ, आपके आखिरी श्वास तक अर्थात मृत्यु तक आपसे प्यार करने के लिए भी परमेश्वर अति सामर्थी है। He is loving you, that's why you are still alive today. वो आपसे प्यार करता है इसलिए आप जीवित हो। If He didn't love you, if He didn't love us, we would have died long ago. हाँ, यदि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम न करता तो कहीं पहले ही हमारी मृत्यु और मौत हो जाती थी। Because of the sins, we are going to hell. हमारे पाप ही के कारण हम नरक और अधोलोक में जाने वाले थे। Because of the disobedience disobedience to the Creator God, we are going to hell. आज्ञा का उल्लंघन हमने किया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरोध में हमने आज्ञा को तोड़ दिया। हाँ, इसलिए हम नरक के भागीदार थे। But Jesus wants us to save from all that punishment of the sin. इन सारे पाप की मजदूरी से आपको मुझे बचाना चाहता है पर प्रभु यीशु मसीह। So Jesus loves you and He wants you to welcome to Him. प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि आप उसके पास आके क्षमा मांगे। If you didn't ask Him into your heart, then this is the right time to do it. यदि आपने अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो ये सही समय है। He will show how great His love towards you. वो इस बात को प्रकट करेगा कि वो आपसे कितना अधिक प्रेम करता है। You will see Him, you will see His love, you will see His grace in your life. आप परमेश्वर की अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करोगे। You will see His real strength, then you will say that Jesus is the most powerful one, He is the creator. उसका सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करोगे तब आप इस बात को कहेंगे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह सच सामर्थ्य परमेश्वर। So the fear of the Lord, that Joseph had fear of the Lord, but he went to prison, but God took him out of the prison, put him in the palace. हम देखते कि यूसुफ के दिल में परमेश्वर का डर भी था, वो बंदी गृह में चले गया, वहां से परमेश्वर ने छुटकारा दिया और राजमहल तक सिंहासन तक पहुंचाया। The second criminal was having the fear of the Lord. He was about to die, but because of the fear of the Lord, he went to Jesus and was saved and went to heaven. हाँ, कुकर्मी नंबर 2, उसके दिल में भी परमेश्वर का डर भय था और उस डर भय ही के कारण उसने प्रभु यीशु मसीह से क्षमा की याचना मांगा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा और उसके पाप क्षमा हो गए। The criminal number 1, he did not wanted to come to Jesus because he never feared God. कुकर्मी नंबर 1 के दिल में परमेश्वर का डर भय नहीं था, इसलिए वह प्रभु यीशु मसीह के पास कभी नहीं आना चाहता था। So he mocked Jesus and he died and went to hell. उसने प्रभु यीशु मसीह की हंसी मजाक किया, ठट्टा किया और नरक में चले गया। From that day to now today, he is in hell, wailing and weeping and कुकर्मी नंबर 1 उस दिन से लेकर आज दिन तक वह नरक में है, विलाप कर रहा है। छोटी सी जिंदगी है। We would have seen our friends dying in front of our eyes. शायद आपने देखा होगा कि हमारे मित्र हमारे नजरों के सामने वे मरते हुए या उनकी मौत को या मृत्यु को। We would have seen our age people, same age group persons dying in front of our eyes. हमारे ही उम्र
के मित्र भी हमारे सामने मरते हुए हमने देखा होगा। We would have seen the younger ones to us who are very young to us, even they are dying and they are going away from this और world. आपने ये भी देखा होगा कि हमारे उम्र से कहीं कम उम्र वाले भी वे भी मौत और मृत्यु हो गया उनका। We would have buried them. हो सकता है हमने उनको दफन भी किया है। So we are seeing everything in this world we cannot say if it will happen or not in our lives, but one thing will happen for sure: we will all die one day. We cannot be sure of anything that's going to happen in our lives, but we can be sure of one thing, that we are going to die one day. हाँ, लेकिन कोई भी बातों का हम निश्चयता तो नहीं दे सकते, पर एक बात की निश्चयता जरूर दे सकते कि हम जरूर एक दिन मरने वाले हैं। Are you ready for that day? क्या आप उस मृत्यु के दिन के लिए तैयार हो? If the day comes, can you say that I will go to heaven? I will go to my Father in heaven. यदि वह दिन नजदीक आ जाए, क्या आप बड़े हियाओं के साथ बोल सकते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा मेरे पिता के पास? Or if the day comes, or we will be afraid. हाँ, क्या वह दिन यदि जब नजदीक आ जाएगा तो क्या आप डर के मारे घबरा जाओगे? So this life is very short. So our only hope is Lord Jesus Christ. ये जीवन बहुत ही छोटा है और हमारा केवल एक ही आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। If you believe in Lord Jesus Christ, even if you die today, you will go to heaven. You will be there forever with Jesus यदि Christ. आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो और मानते कि आज भी मृत्यु हो जाए, Come on to the knees. कृपा करके घुटने पे आइए। If you are living for this world, Jesus is speaking to you that He came into this world to show how great His love towards you. प्रभु यीशु मसीह आपके लिए संसार में आया और वो आपसे बातें कर रहा है और उसके लिए आपके दिल में कितना महान प्रेम है ये प्रकट करना चाहता है। Maybe you are living for the world, you are living for the desires of your heart and flesh. हो सकता है आपके मन की इच्छाएं, शरीर की अभिलाषा और संसार के लिए जीवन बिता रहे होंगे। Or you are living for the people and you are living for the friends and your close ones in this earth. और आपके मित्र और आपके करीबी दोस्त और रिश्तेदार के लिए क्या आप जी रहे हो? Maybe you are doing a lot of shameful things when you are alone with your friends or when you are alone by yourself. हाँ, जब आपके मित्र साथ में होते या आप अकेले होते, आप बहुत सारे शर्मिंदा बातें ऐसा किया होगा। Even if you did a lot of grave bad things, Jesus today is calling you to His cross. हाँ, चाहे आपने आपकी जिंदगी में बहुत से गलत काम, गंदे काम, शर्मिंदा काम किया, पर आज प्रभु यीशु मसीह आपको क्रूस के पास बुला रहा है। Jesus is hanging on the cross for you. प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे लटका हुआ है। Look at the cross now. उस क्रूस के पास देखिए। Look at Jesus hanging on the cross. उस प्रभु यीशु मसीह के पास देखिए जो क्रूस पे लटका हुआ है। That is for you. वो आपके लिए है। That is because of you. केवल आपके लिए। That is to save you. आपको बचाने के लिए। You should have been there. हाँ, हम उस क्रूस पे रहना चाहिए था। And we should have been there. हाँ, हम वहाँ पे रहना चाहिए था। But Jesus is hanging on the cross and look at Him. प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है। एक बार अपनी आंखें उठाकर क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को देखिए। And He is saying, this is for you. I love you so much. Sorry. And He is saying from the cross, I did this for you because I love you very much. क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ये बातें बोलता है, ये सब कुछ है मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूँ। There is no love in this world which is greater than love of God, Lord Jesus इस Christ. संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका प्रेम महान है, केवल प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सबसे महान है। This world wants something from you when they love you. हाँ, This world wants something from you if they love you. हाँ, यदि संसार आपसे प्रेम करता है, वो अपने स्वार्थ के लिए वो आपसे कुछ न कुछ बातें का उम्मीद करता है।
But Jesus don't want anything, but he wants your bad, rotten heart. हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपसे किसी बात की अपेक्षा नहीं करता है, परंतु वो आपका सड़ा हुआ दिल को चाहता है। He wants to change your heart. वो आपका दिल को बदलना चाहता है, He wants to change your life. आपके जीवन और जिंदगी को बदलना चाहता है। He wants to cleanse you with your precious blood, with his precious blood. अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा वो आपको शुद्ध करना चाहता है, He wants to make you holy. वो आपको पवित्र करना चाहता है, He wants to save you. वो आपको बचाना चाहता है। He wants to take you to heaven when you die. जब आप मर जाओगे आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है। He wants to be with you always on this earth. हाँ, धरती पर सदैव वो आपके साथ रहना चाहता है। So please accept his offer and accept him into your heart. हाँ, कृपा करके प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में स्वीकार कीजिए और अपने उद्धारकर्ता के नाई उसके अपने दिल में बुला लीजिए। If you already accepted Lord Jesus Christ as your personal savior, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के नाई दिल में स्वीकार किया है, please treat the fear of the Lord as your treasure. हाँ, तो आप ऐसी प्रार्थना कर सकते कि परमेश्वर का भय मेरा धन बने। Fear of the Lord is your treasure. If you have fear of the Lord, you'll see the blessings of the Lord. परमेश्वर का भय एक खजाने के समान है, धन के समान है, और यदि ये परमेश्वर का भय आपके पास है तो आपका जीवन आशीषित होगा। So let us fear the Lord. तो आइए हम परमेश्वर का भय को माने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी प्रेम ईश्वर के पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर, सृष्टि करता परमेश्वर, मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर, स्वर्गदूतों की आराधना को छोड़कर, मानव रूप धारण कर इस संसार में आए, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए नहीं बल्कि अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए आए। उस कुकर्मी नंबर 1 ने प्रभु यीशु मसीह के करीब नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह को हंसी और मजाक में उड़ाया, हमेशा के लिए वह नाश हो गए नरक में रोते हुए तड़पते हुए। परंतु कुकर्मी नंबर 2 ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। उसने प्रभु यीशु मसीह से क्षमा की प्रार्थना किया और तुरंत अपने निश्चयता दिया कि आज तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्या है अद्भुत और धन्य बात है। आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, जिसके हाथ में अधोलोक की कुंजी है, नरक से बचाने वाला केवल एक ही मात्र प्रभु यीशु मसीह है। आकाश और पृथ्वी के नीचे केवल एक ही नाम है जिस नाम में हमें उद्धार मिलता है, पापों की क्षमा मिलता है। मत्ती 1 अध्याय में कहता है प्रभु यीशु मसीह नाम का अर्थ वह अपने लोगों को पापों से छुटकारा देगा। हाँ प्रभु जी, पापों से छुटकारा देने के लिए आप संसार में आए। पाप क्या था आपको मालूम नहीं, पाप से अज्ञात थे, निष्पाप और निर्दोष था, तथापि आपने पाप के ऊपर बड़ी विजय को प्राप्त किया, मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त किया, पाप का डंक को तोड़ दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से भी जी उठे। आज जो जीवित परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है, इसलिए हम बहुत ही आभारी है। धन्यवाद और स्तुति चढ़ाते हैं, धन्यवाद और स्तुति चढ़ाते। पवित्र आत्मा के द्वारा आपने यूसुफ की बात को स्मरण दिलाया कि यूसुफ के मन में परमेश्वर का डर भय था, इसलिए उसने हर एक पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया, वह जयवंत मसीहा बना। थोड़े समय का दुख उठाने के लिए परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह मिला और उस बंदीगृह से आपने उसको महल के और सिंहासन तक पहुंचाया। और परमेश्वर का डर भय हमारे जीवन में बढ़ता जाए, परमेश्वर का डर भय हमारे लिए धन और खजाने के समान बने, और उस खजाने की हम इच्छा और अपेक्षा और एक लालसा रखें कि उस खजाने को मुझे जीवन में प्राप्त करना है। संसार का धन मिले या न मिले, परंतु परमेश्वर का भय एक खजाने के समान है। उसके पीछे दौड़े जाने के लिए विश्वासी भाई बहनों की मन की आंखों को खोल दीजिए, उनके मन में वचन की भूख और प्यास को निर्माण कीजिए। यह आपसे नम्र विनंती प्रार्थना करता हूँ। आप ही दया कीजिए, दया के सागर हो, करुणा निधान परमेश्वर हो। इस दुष्ट संसार में हम जी रहे प्रभु जी, इस दुष्ट संसार में सारे मलिनता से हमें बचा के रखिए। वचन का बीज का रक्षा कीजिए
ताकि शत्रु शैतान आके इस वचन को बीज को न चुरा ले। आने वाले दिनों में इस वचन का बीज का कई पट फल आ सके, ऐसा अनुग्रह और कृपा दीजिए। विनती को सुना, धन्यवाद देते। आगे का समय आत्मा प्राण शरीर आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब से स्वर्गीय पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अखंड सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा सारे संत गणों पर, यहाँ उपस्थित भाई बहनों पर युगान युग तक बनी रहे, आमीन। सभी को जय मसीह, जय मसीह। Wonderful.